Hello everyone. Uh, Now I'm going to solve question number 13 of this exercise. This is one of the most important questions, so mark it very important in your NCRT. Fine. So this question number 13 I'm going to solve. So in this question, what we have to do, we have to prove that this is divisible by 64. ठीक है, ये 64 से divisible है, ये हमें prove करना है. So let's start. So here I'm writing only 9 n plus 1. Okay, so at a place of this 9 I'm writing 1 plus 8 whole raised to power n plus 1. We can write this because 9 को मैं लिख रहा हूँ 1 plus 8. Now you have to expand it. So c n plus 0 1, वही को हम इसकी थ्योरम यूज कर रहे हैं. तो here you have to write 0. तो फर्स्ट नंबर है उसकी पावर पहले लिखेंगे आप n plus 1. तो 1 की पावर तो कुछ भी आ जाए तो 1 ही रहेगा. एंड सेकेंड नंबर की पावर 0. सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बेटा. प्लस सी हेयर इट वुड बी n plus 1, here 1, and 1 raised to power n only because we have to subtract the power of 1 and we have to increase the power of 8 into 8 raised to power 1 plus similarly c n plus 1, this would be 2, it is 1 n minus 1, and this is 8 raised to power 2 plus dot. You have to write other terms only, other terms. Okay, no need to write next other terms, only 3 terms you have to write. So your 1 plus 8 raised to power n plus 1 would be equals to, this would be 1, this is 1, this is 1, so it will give you 1 only, plus when you will solve this you will get n plus 1 only. The value of this would be n plus 1, this is 1 and this is 8 only, plus, and here you will get 64. We got 8 square, it is 64 is coming. Okay, and when you will solve this n plus 1 or 2, so here I am solving this. See here, it is n plus 1 factorial, this c n plus 1 and 2. I am solving this only over 2 factorial, and then this minus this, so you will get n minus 1 factorial. So when you solve n plus 1, the next term will be n. After that it would be n minus 1 factorial. This is 2 factorial, 2 into 1, and n minus 1 factorial. This factorial will remain the same, and this will cancel out, and you will get n plus 1 n plus 1 over 2 only. Okay, plus other terms. Okay, so I'm erasing this one. Okay, now as you can see here 8 square is coming. The next would be 8 raised to power 3 term will come, and after that 8 raised to power 4 will come. Okay, and but 64 will definitely come. Okay, in second term you are getting 64, in third term you will get 64 into 8, in next term you will get 8 raised to power 4, 64 into 64, and so on. But 64 you can take common. Okay, after the second term, from third term and after on you can take 64 as common. So you will write in the next step 1 plus 8 n plus 8 plus 64 into other terms, क्योंकि उन सब में 64 कॉमन आएगा ना. सो मैं सिर्फ 64 दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे 64 से मतलब है, मुझे डिविजिबल बाय 64 दिखाना है. एंड दिस इज योर 9 रेज़्ड टू पावर n plus 1. आप इन सबको इधर लेके आओ. 9 रेज़्ड टू पावर n plus 1, this would be minus 8n, 8 plus 1, this would be minus 9. That is equal to 64 into other terms. So other terms are multiplied by 64, so you are taking 64 as common. So that means what? It is divisible by 64 because 64 इसका एक factor आ रहा है ना. So you can write yes, hence proved it is divisible by 64. Got it? So this is how you can solve this question number 13 of your exercise. Okay, and next question, this is your homework. Question 14 you have to solve.
If you are able to solve, please send in the group. So now we are starting our next exercise, that is exercise 8.2. We will not solve the miscellaneous exercises of this chapter. We will solve only 2 exercises. Okay, now see children, in your exercise 8.2, so these formulas you will use. Please understand what are these formulas actually. अगर आपको कोई एक्सप्रेशन a प्लस बी होल टू पावर n में गिवन मिलता है, ठीक है, तो उसका जनरल, अगर आपको बोलते हैं कि उसका जनरल टर्म निकालो, उसका कॉफिशिएंट निकालो, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. इसमें आपको एक्सपैंड करने के लिए नहीं बोलेगा वो. ओके, बोलेगा 15 टर्म निकालो, 16 टर्म निकालो, कॉफिशिएंट निकालो. तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है. कैसे यूज करना है, आई एम टेलिंग यू. आई एम गिविंग यू फर्स्ट क्वेश्चन. सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी. द क्वेश्चन इज x plus 3 and whole raised to power 8. This is given. And can I find the coefficient of x to the power 5? क्या निकालना है हमें? Find coefficient of x to the power 5. So how will you do this? See, first of all, I'm going to apply this formula. So here, and your n is 8, your a is x, your b is 3. r is not, हमें नहीं पता r क्या है. सो हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टी आर प्लस 1. सी, योर n इज 8, r आपको नहीं पता, so it will remain r. योर a is x, x raised to power n आपको पता है 8, and r आपको नहीं पता. And then b is your 3, so 3 raised to power r. Okay, so ये हमने लिख लिया, ठीक है. अब आपने क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5. सो हियर x इज, हियर इट इज, एंड आपको x के पावर 5 को निकालना है. तो आप क्या करो, दोनों के बेस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर दो. सो यू विल राइट 8 माइनस r इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, सो आपको यहां से बेटा r मिल जाएगा. r विल बी 3. पुट हियर 3 प्लस 1, c 8, 3, x 5 and 3 raised to power 3. फाइन. क्वेश्चन में क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 निकालना है आपको. सो कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 इज इक्वल्स टू c 8 3 and 3 raised to power 3. इसको छोड़ के जिसके साथ में आ रहे हैं नंबर सारे लिख दो कोएफिशिएंट में और इसको सिंपलीफाई कर दो. Now just you have to simplify this, that is 8 factorial over 3 factorial into 5 factorial into 27. So your 8 factorial will be 8 into 7 into 6 into 5 factorial over the 3 is 2 into 1, and 5 will remain same, so 5 and 5 will cancel out and this 6 will cancel out and you will get 56 into 27 कर लेना मल्टीप्लाई भाई. 56 into 27 को मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द कोएफिशिएंट्स. चलो फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं. इट इज 1512. चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन ठीक करी या नहीं करी है. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेम इन सेकेंड क्वेश्चन, आप किसी भी एक या ए या बी आपको निकाला ना कोएफिशिएंट a की पावर 5 और b की पावर 7. सो आप किसी भी एक वेरिएबल की पावर को कंपेयर कर देना, चाहे a की पावर को कर देना चाहे b की पावर को कर देना, बट किसी भी एक को करना. तो आपको r मिलेगा, वही r को फिर सॉल्व कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या करना है आपने, ठीक है. अगर क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत आती है सो प्लीज आस्क, बट नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3. चलो सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देता हूँ मैं. जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर देता हूँ. हियर एक्सप्रेशन हमें गिवन है a माइनस 2b एंड होल टू पावर 12. आपको कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 एंड b की पावर 7 चाहिए ना. तो पहले इसको दोनों टर्म में कन्वर्ट करो. सी योर n is 12,
your A is will remain A, and your B is -2B. ठीक है, -2B आएगा ना, कंपेयर करोगे B आपका -2B आ रहा है। अब आपने क्या करना है, मैं सिर्फ एक ही पावर को कंपेयर कर रहा हूँ। तो 12 माइनस आर इक्वल्स टू 5। तो अब बच्चा आपका आर मिल जाएगा आपको 7। पुट कर दो R7 इसके अंदर। -2 B R इज 7। B7 को बाहर फेंको, -2/7। इसका कोफिशिएंट क्या है, ये है, ये टर्म और ये टर्म। इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना इसको, इसे लिखना कोफिशिएंट ऑफ A⁵ एंड B⁵7 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, और सिंप्लीफाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का भी। और क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको जनरल टर्म में शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो ये और भी ज़्यादा सिंपल है, जस्ट वेट समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3, x² minus y raised to power y and then whole raised to power 6, this is given and just you have to write the general term. General term means आप इसमें वैल्यू पुट करके छोड़ दो, ये और उससे भी ज़्यादा सिंपल है। tr+1 c n आपका 6 है इसके अंदर, r आपको नहीं पता, a आपका है x², 6 minus r, your b is -y, b आपका -y है ना, कंपेयर करो, एंड दिस इज r। हो गया क्वेश्चन, दिस इज अ जनरल टर्म। इस 2 को अंदर इंसर्ट कर देना, तो ये आपका जनरल टर्म आ गया। दिस इज अ जनरल टर्म। ठीक है, यहीं पे छोड़ देना इस क्वेश्चन को। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं समझा देता हूं। सी इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्सप्रेशन ये गिवन है, आपको इसमें 4th टर्म निकालनी है। ठीक है, अब बेटा 4th टर्म का मतलब है आपका जो r आप लोगे वो आप 3 लोगे। ठीक है, अगर कहता है 11 टर्म निकालो तो आप r 10 लोगे। ठीक है, तो आप इसमें जो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पर आपको r पता है, अगर 4 टर्म बोलता है तो आपको r पता है, दैट इज 3, सो 3 + 1। n आपको पता है 12, r आपको पता है 3। 4 टर्म है तो 3 लेना है, 11 टर्म है तो 10 लेना, 9 बोला है तो 8 लेना है। ध्यान रखना, ये आपका है x, n आपका है 12, r आपका है 3, b आपका है -2y और इसकी पावर 3। कर लोगे सिंप्लीफाई इसको, कोई कोफिशिएंट नहीं निकाला, जस्ट सिंप्लीफाई कर देना, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इनको मल्टीप्लाई कर देना वैल्यूज को, और लास्ट में x के पावर 9 और y के पावर 3 ऐसे शो कर देना। तो आपके पास जो आंसर आएगा लास्ट में, कहते हो तो बता देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1760 x to the power 9 एंड y to the power 3। कर लेना सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन बस नाउ क्वेश्चन बस 6 भी सेम ऐसे ही है, 13 टर्म निकालनी है, r आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, वो बस सिंप्लीफाई कर देना उसे। हाँ, अब हम करने जा रहे हैं मिडल टर्म्स। अब ध्यान रखना मिडल टर्म्स कैसे निकालते हैं। नाउ चिल्ड्रन एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज मिडल टर्म। तो मिडल टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ना, जो पावर है फंक्शन की उसकी पावर चेक करनी पड़ेगी। वो पावर आपकी इवन आ रही है, ऑड आ रही है, तो आपके 2 मिडल टर्म्स आएंगी, एक तो ये वाली आएगी और एक ये वाली आएगी। कैसे आएगी अभी बताऊंगा।
अगर आपका n इवन आ रहा है तो आपका सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आएगी। देखो जैसे अब क्वेश्चन नंबर आपका है, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। अभी कह रहा है एक्सप्रेशन हमारे पास है 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 एंड दिस होल रेज़ टू पावर 7। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास और हमें इसकी मिडिल टर्म निकालनी है। तो बेटा आपका जो n है क्या है, 7 आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो इसकी दो मिडिल टर्म आएंगी। एक आपकी आएगी यहाँ पे n पे, ये फॉर्मूला है ना, तो 7 n की जगह पे 7 पुट करो, 7 प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म एंड n प्लस में दैट इज 7 प्लस 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 1 8 अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा 7 प्लस 1 होल अपॉन 2 प्लस में 1 टर्म। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4th टर्म, हैंड राइटिंग समझ लेना। ठीक है, एंड ये आपको आ जाएगा 5th टर्म। तो आपको पहले फोर्थ टर्म निकालनी है। 4th टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, r आपका 3 हो जाएगा, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन करा ना, r आपका 3 हो जाएगा, r 3 पुट कर देना। ठीक है, एक्सप्रेशन ये रहा, n आपका 7 है, a आपका 3 है, b आपका ये माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 है, पुट कर देना इसके अंदर, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही फिर आप 5th टर्म भी निकालना, तो उस केस में आपका r जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, फिर r 4 ही पुट कर देना इसके अंदर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके अलग अलग निकालनी है टर्म्स। ठीक है, जैसे हम 4th टर्म में बात कर रहा हूँ, 5th टर्म निकालनी है, तो वो तो आप निकाल ही लोगे ना, पीछे भी हमने करे हैं क्वेश्चन पे बेस्ड। तो ये अलग अलग दोनों टर्म्स निकाल देना, 2 टर्म निकलेंगे अगर n आपका इवन आ रहा है तो। अगर n आपका सपोज यहाँ पर 8 होता, इसकी पावर अगर मैं लिख रहा हूँ अगर 8, जैसे एग्जाम कुछ बुक में नहीं है, मैं खुद अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये आपका इवन हो गया। तो इवन के लिए फॉर्मूला था ये वाला, n/2 प्लस 1, यानी कि n/2 मतलब 8/2 प्लस में 1, तो ये आपका आएगा 5th टर्म। तो आपको सिर्फ 5th टर्म निकालनी है इसमें, अगर आपका ऑड होता है तो, इवन होता है तो। ठीक है, तो सिर्फ उसमें एक ही टर्म निकालनी होगी, बट उसमें आपको 2 टर्म निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूला ये रहा, कैसे निकलेंगे, ये रहा फॉर्मूला इवन के लिए, ये रहा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से कॉपी कर लो, लर्न कर लो। ठीक है जी, ये आपका इवन के, ऑड के लिए, ये आपका इवन के लिए फॉर्मूला। तो इसके दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करो आप लोग। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो हार्डली 1 more class I will take to complete this chapter. क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा देता हूँ, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, ये इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में चिल्ड्रन हमें एक्सप्रेशन गिवन है 1 प्लस ए होल की पावर n प्लस 1, और हमें कह रहा है कि प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n बोथ आर इक्वल। पहले तो जनरल नंबर पुट करते हैं, जिसकी सी n आपका है यहाँ पर m प्लस में n, ये आपका r नहीं पता आपको, a आपका है 1, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वैसे ये आना चाहिए 1 की पावर n माइनस, यानी m प्लस में n माइनस में r, एंड देन b आपका है a, तो a की पावर r आपको नहीं पता, तो इस टर्म को लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो कुछ नहीं करना उसके साथ। सी m प्लस n r, and this is, I'm not writing again, this is your a raised to power r only, so this is your general term. now हमें क्या निकालना है, पहले कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m। अगर a की पावर m का मुझे कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट में क्या करते थे, पावर कंपेयर करते थे ना, तो आपका a क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, r आपका m के इक्वल हो गया, पुट कर दो जिसके अंदर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m, दैट इज c
m प्लस एन m। सॉल्व करना इसको आपको आता ही है, m प्लस एन फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, m प्लस एन माइनस m, तो ये सिर्फ n आएगा। वही फॉर्मूला लगा दिया मैंने कॉम्बिनेशन का, ये आपके पास आएगा। अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ a की पावर n निकालना है, सेकंड पार्ट क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ a की पावर n, तो इस केस में आपका जो r है वो हो जाएगा n। ठीक है, पुट कर देना इसमें, तो आपका ये आएगा कॉफिशिएंट आएगा CmN और यहाँ पर n आएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये भी सेम ही तो आएगा, माइनस करोगे तो ये m फैक्टर, देखो सेम सेम आ रहे हैं दोनों, हेंस दे आर इक्वल। समझ में आ रहा है? पहले हमने कॉफिशिएंट, हमने पहले इसकी जनरल टर्म निकाली, जनरल टर्म आपके पास ये आ गई। अब आपको कॉफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, a की पावर m, तो आपने दोनों की पावर को कंपेयर कर लिया, r आपको m मिला, आपने इस क्वेश्चन में पुट कर दिया, तो दिस इज अ कॉफिशिएंट, ये लिखा आपने, सॉल्व करा, ये आ गया। अब आपको कॉफिशिएंट ऑफ a की पावर n चाहिए, तो आपका r n हो गया सेकंड केस में, अब जहाँ पे आपका यहाँ पे n हो जाएगा और इसका कॉफिशिएंट ये हो गया, तो मैंने सिर्फ वही लिखा है और n लिख दिया यहाँ पे r के प्लेस पर, इसको सिंप्लीफाई करा, सेम आंसर आ रहा है, हेंस दे आर इक्वल। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करा रहा फिर आज, इतना ही करके रखो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे 10th 11th और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क।